1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 14 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स, नंबर्स 24 चैप्टर, 25 चैप्टर, 26 चैप्टर हम पढ़ेंगे। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मार्क 14 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स, नंबर्स 24 चैप्टर, 25 चैप्टर, 26 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 वचन से 26 वचन, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय 25 अध्याय 26 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पहले पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 26 वचन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी मदद करो। आप हमारे सहायता करने वाले पवित्र आत्मा हो। आप हमारा खिलौना नहीं हो। आप हमें मन बहलाने वाला आत्मा नहीं हो। आप हमको आनंद देकर और गलतियां करते रहने देने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं हो। आप झूठ का आत्मा नहीं हो। आप हमें धोखा और भ्रम में पड़े रहने देने वाला आत्मा नहीं हो। जब आप वो हो ही नहीं खुदा, तो हमें ये अनुभव भी नहीं होना चाहिए। अब फादर गॉड, ये अनुभव देने वाले झूठ की शक्तियों को हमारे से हटा दीजिए। सच्चाई का सामना कीजिए। आप हमारे हथियार हो परमेश्वर के आत्मा, हथियार और हमारा सहायक होकर हमें सारी बातों को सच्चाई में पूरी तरह से बताने वाला परमेश्वर का आत्मा हम में प्रकट हो जाओ। वचन पढ़ने के दौरान नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मार्क 14 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्शन में से पहले पढ़ेंगे। A conspiracy against Christ. A woman poureth ointment on his head. Judas covenanteth to betray him. He eateth the Passover. He instituted his supper. Peter thrice denieth him, etc. First verse. After 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment and spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, Let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. And Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray him unto them. And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him. And the first day of unleavened bread, when they killed the Passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the Passover? And he senteth forth 2 of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water. Follow him, and wheresoever he shall go in, say ye to the good man of the house, The master saith, Where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? And he will shew you a large
upper room furnished and prepared there, make ready for us. And his disciples went forth and came into the city, and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. And in the evening he cometh with the 12, and as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me. And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? And another said, Is it I? And he answered and said unto them, It is one of the 12 that dippeth with me in the dish. The Son of Man indeed goeth as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Good were it for that man if he had never been born. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and brake it and gave to them, and said, Take it, this is my body. And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said unto them, This is my blood of the New Testament, which is shed for many. Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it new in the kingdom of God. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 14 अध्याय का 1 वचन से 26 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। बैतनिया में यीशु का अभियान 3 वचन से आगे। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सको उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। यहूदा का विश्वासघात 10 वचन से आगे। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज 12 वचन से आगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहाँ हमारे लिए तैयारी करो।
चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। प्रभु भोज 22 वचन से आगे। जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा हो, आपके अंदर झूठ नहीं है। पवित्र आत्मा, आप हमें खिलौना नहीं है, हमको मन बहलाने वाला कोई यंत्र आप नहीं हो। आप परमेश्वर का सच्चाई हमारे अंदर लाने वाला आत्मा हो। परमेश्वर के आत्मा झूठ, भ्रम और भ्रष्ट करने वाली बातों को हमारे अंदर से उखड़ जाने दीजिए और हमें जो परमेश्वर आप सच्चाई हो वही हमको सामना कराइए और हम सच्चाई का आदर करें और सच्चाई के पीछे चले, ऐसा अनुग्रह कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।